Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Oh, Good Tingare. morning, sir. I am going to start with a new topic, that is rehabilitation of sports injuries. Rehabilitation is very important as far as the management of injuries are concerned and sports injuries are concerned, because without rehabilitation, no player gets returned to his game with full fitness and full confidence. So it is such an aspect of overall management of sports injury that it cannot be overlooked, and it is an essential part. We should lay a lot of stress on it. Mere absence of pain, swelling, and difficulty in walking or moving the injured part is not, that is a concern, is our concern, but regaining overall fitness should be our goal, and we should be concerned about that. So rehabilitation, जिसको हम हिंदी में पुनर्वास भी कहते हैं, पुनर्वास करना या रिहेबिलिटेट करना, एक आप ऐसे समझें कि पुनर्वास शब्द बड़ा व्यापक है, वो खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं यूज होता है, स्पोर्ट्स के बाहर भी बहुत सेंस में, बहुत संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्वास के माध्यम से सामाजिक सोशल रिहेबिलिटेशन भी हो सकता है। हम तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन वाला एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन भी हो जाता है, मेंटल रिहेबिलिटेशन भी हो जाता है, बहुत तरह का पुनर्वास होता है। तो आप सिर्फ फिजिकल सेंस में रिहेबिलिटेशन को यहाँ पढ़ेंगे, और वो भी फिजिकल सेंस में सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड सेंस में आप इसको पढ़ेंगे। तो हमने जो भी आपको रिहेबिलिटेशन का कांसेप्ट बता रहे हैं, इट इज इन द sense, it is in sports sense, you can say, where we are going to manage the rehabilitation of sports injuries. पुनर्वास करना या पुनर्वासन की प्रक्रिया जो है, ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, और जैसे मैंने पहले बताया कि बिना इसके प्लेयर की प्री इंजरी लेवल की फिटनेस जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। Now what you are saying, one physio is working upon a player who is lying on the ground. So the job of physio is quite essential as far as the first aid and management, and including rehabilitation of the sports injury. So many physios are working and rehabilitation is going on. Now, what is rehabilitation? हिंदी में तो हमने बता दिया कि पुनर्वास कहते हैं, ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन पुनर्वास की परिभाषा क्या है? किसको हम कहेंगे कि पुनर्वास को अगर परिभाषित करना हो, पुनर्वास को बताना हो कि भाई कैसे हम पुनर्वास को डिफाइन कर सकते हैं? तो रिहेबिलिटेशन इज ए ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट्स। रिहेबिलिटेशन एक तरह का ट्रीटमेंट है, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। एक तरह का इलाज है, जो इलाज एक व्यापक संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो ये इलाज खाली पेन को कम कर देना, स्वेलिंग को कम कर देना, या आपकी कोई जो सिम्टम्स हैं, आपके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों के उपचार तक ही सीमित नहीं है। इसका जो संदर्भ है वो काफी व्यापक है। तो रिहेबिलिटेशन एक ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट्स हैं। So many treatments may be a part of this rehabilitation program,
And this rehabilitation program is designed because ये ऐसा है कि इसकी हम एक डिजाइनिंग करते हैं, हमें इसको बनाते हैं. We structure a rehabilitation program, we structure a rehabilitation protocol, keeping in view the type of injury, the severity of injury, the condition of the player at the time of reporting for treatment and rehabilitation. So many factors come into play and come into view for designing a proper rehab program. So rehabilitation, what is rehabilitation? It is a treatment or treatments which is designed to facilitate the process of recovery. तो rehabilitation क्या करता है? Recovery के process को. And please mind it, here the term recovery should not be again misconstrued. It should be assumed that we are recovery. Recovery here means recovery from injury. It doesn't mean recovery from muscle fatigue. In narrowest sense, you can say it कि भाई मसल जो फटीग होता है, जो थकान होता है, उस थकान से रिकवरी को ही हम रिकवरी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. Here recovery means recovery from injury. When we are totally, we can say, yes, we are totally out of the grip of the injury. So rehabilitation is a treatment or treatments designed to facilitate the process of recovery from injury. Of course, we are working in sports, so we face day-to-day and day-to-day basis lots and lots of injuries. So the recovery is from injury, and sometimes, as I told you, there could be certain illnesses and certain domain of physiotherapy, as I explained to you in my introductory class, that physiotherapists are working in hospital setup also, not only in a sports injury department, a sports medicine department, but rather they are working in various other departments of departments of medicine and surgeries. So physiotherapists are crucial team member for the rehabilitation of patient or athlete from diseases as well. And तो मतलब कहने का मतलब है कि खाली इंजरी नहीं, बीमारियों से भी हम रिहेबिलिटेशन के माध्यम से हम ठीक होते हैं, हम उनसे वापस जा सकते हैं और निकल सकते हैं. तो रिहेबिलिटेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम रिकवरी इंजरी और इलनेस से हमें मिलती है, एंड to as normal condition as possible. And what we aim for, what we strive for, we aim and strive to be as normal as we were before the you can say before getting injured, before getting sick, before getting ill. So rehabilitation को अब आप समझें ऐसे कि एक तरह का उपचार है. अब ये डेफिनेशन तो ये कहती है कि एक तरह का उपचार है, और इसमें हो सकता है कई सारे और उपचार समावेशित हों, लेकिन ये जो उपचार है रिहेबिलिटेशन के माध्यम से, वो प्लेयर की जरूरतों के मद्देनजर डिजाइन किया गया है, और इसके माध्यम से हम जो उसकी इंजरी और इलनेस से जो रिकवरी है, जो उसका पुनर्वासन है, जो उसकी पुनर्वास की प्रक्रिया है, उसको उसके माध्यम से हम उसको जितना सामान्य बना सकते हैं उतना बनाने का हम प्रयास करते हैं. तो ये डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन तो इस तरह से पुनर्वास को परिभाषित करती है. Now coming on to the next definition. The next definition says, and it is quite simpler also, the next definition says that the rehabilitation is the process of restoration. Restore करने का एक process है. पुनर्वास हमारी क्षमताओं को और पूर्व अर्जित क्षमताओं को, जो क्षमताएं शारीरिक क्षमताएं हैं, वो सारी शारीरिक क्षमताएं हमारी प्रभावित हो गई हैं चोट की वजह से, तो उन सारी पूर्व अर्जित क्षमताओं को दोबारा से हासिल करने के लिए, रिगेन करने के लिए, या उनका रेस्टोरेशन के लिए हम प्रयास करते हैं रिहेबिलिटेशन में. और अगेन द डेफिनेशन सेज टू इट्स प्री इंजरी लेवल फिटनेस.
You see, why pre-injury level fitness? Because you see, we were all going well in our game. Everything was going fine and smooth. We were daily undertaking our training and every kind of physical exercises advised by our coaches without any problem. But all of a sudden, injury struck, and we got afflicted because of it and lost our capability to train, capability to work as a part of team, and we are unable to play the game the way we wish to. Now, तो रिहेबिलिटेशन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हमें तो प्री इंजरी के पहले वाला जो हमारा फिटनेस का स्तर है उस पे हमें पहुंचना है, और वो पहुंचने के लिए हमें कैसे हम पहुंचेंगे, अब ये नहीं समझ आ रहा। वहां पे पहुंचने के लिए हमें रिहेबिलिटेशन का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे तो हमारा कंप्लीट रेस्टोरेशन नहीं होगा, हमारी फिटनेस का कंप्लीट रेस्टोरेशन नहीं होगा। तो उस कंप्लीट रेस्टोरेशन के लिए वी हैव टू अगेन chalk out a rehabilitation program. Now, we are not going to chalk out because we as a athlete or as a patient, we don't know what to do. We simply we will go to a sports medicine doctor or a sports physiotherapist who will examine you, check you, design you a rehab program, and we have to be compliant patient. We have to comply whatever the instruction, whatever the type of exercises, whatever the type of tips, suggestions, or modification in our day-to-day activity, whatever small, you see, advices are given, we have to just take care of all those instructions, follow them in entirety, and by following the rehabilitation program, the process of restoration becomes possible to its pre-injury level fitness. So this is the substance of definition number 2. Now coming on to the definition number 3. The third definition says rehabilitation is the process to regain full functions following injury. Following injury, rehabilitation वो एक प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण क्रियाकलाप को, अब यहाँ पे संपूर्ण क्रियाकलाप, संपूर्ण फंक्शंस, संपूर्ण कार्यशैली से मतलब हम संपूर्ण गेम खेलने की अपनी दक्षता से, अपनी योग्यता से समझ सकते हैं. So rehabilitation is the process to regain full functions following injury and involves restoring strength, flexibility, power, etc. These are not the only 3 things we wish to achieve. There could be so many other components of physical fitness. So restoring strength, flexibility, power, etc., and is achieved through various exercises and drills. तो जब तक वेरियस एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स नहीं करवाएंगे पेशेंट को, नहीं खिलाड़ी उनको करेगा, तो तब तक उसकी जो प्री इंजरी लेवल की फिटनेस है वो नहीं हासिल होगी. पेन तो कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, दवाइयां खाएंगे उससे दर्द कम हो जाएगा, फिजियोथेरेपी की मॉडलिटी यूज करेंगे उससे दर्द स्वेलिंग कम हो जाएगी, लेकिन उसकी प्री इंजरी लेवल की फिटनेस के जितने सारे आयाम हैं, जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ व्यायाम के माध्यम से हासिल होंगे. तो यानी जो व्यायाम चिकित्सा है, हमने आपको एक क्लास व्यायाम चिकित्सा की भी लिया है, एक्सरसाइज थेरेपी की भी लिया है. तो व्यायाम चिकित्सा के माध्यम से जो सारी हमारे फिजिकल फिटनेस में जो भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे ताकत बढ़ाने, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, बैलेंस बढ़ाना, एजिलिटी बढ़ाना, सब कुछ व्यायाम से ही तो संभव होने जा रहा है.
उसके लिए तो हम तो ऐसा तो कुछ नहीं करने वाले हैं कि दवाई खा लेंगे या सिर्फ मशीन लगा लेंगे तो हम फिट हो जाएंगे, या वो फिटनेस के कंपोनेंट्स हमारे पहले जैसे पूर्ववत हो जाएंगे, वो नहीं होने वाले हैं. So you have to understand that you have to undergo a well-designed rehab program in its entirety and follow the instructions closely and abide by whatever is being told to you to regain this. Now, rehabilitation के बारे में अभी तो हमने 3 definitions पढ़े. अब ये देखें कि रिहेबिलिटेशन क्या है. रिहेबिलिटेशन शाब्दिक रूप से देखा जाए तो 2 शब्दों का एक मिला हुआ कॉम्प्लेक्स वर्ड है. रिहेबिलिटेशन, री प्लस हैबिलिटेशन यू कैन से. ये रिहेबिलिटेशन एक लैटिन वर्ड है. री मीन्स, जैसे आप कह सकते हैं, री मीन्स दोबारा, अगेन. किसी चीज को कहते हैं कि जहां अंग्रेजी में एक प्रीफिक्स री लग जाता है तो री मीन्स दोबारा. एंड हैबिलिटेशन जो है हैबिटेयर से बना है, तो हैबिटेयर मीन्स टू मेक फिट अगेन. सो री मीन्स अगेन एंड हैबिटेयर मीन्स टू मेक फिट अगेन. सो देयरफॉर रिहैबिलिटेशन इज ए प्रोसेस to make one fit again. The process of making one fit, process to make a person fit again is the real concern of rehabilitation, you can say. So this is in brief about the etymological meaning of the rehabilitation, besides the various definitions which we have given you. और हिंदी में तो आपको बता दिया कि हिंदी में रिहेबिलिटेशन का मतलब यह है कि पुनर्वास करना या पुनर्वासन की प्रक्रिया को हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये इतना बड़ा काम है, कोई आसान काम नहीं है. चोट लगना बहुत आसान है. आप जैसे चाहें वैसे, कुछ नादानी में, कुछ जोश में, कुछ जल्दबाजी में, कुछ अपने मस्ती में भी, कई दफे ना चाहते हुए भी, कई दफे हम थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और चोटें लगा बैठते हैं. लेकिन चोटों से उबर पाना टाइम कंज्यूमिंग, समय लगेगा. यू कुड बी आउट ऑफ गेम फॉर वीक्स एंड मंथ्स. तो डिपेंड करता है किस तरह की चोट लगाई आपने, किस तरह का आपने मतलब जो है वो है. तो रिहेबिलिटेशन क्या है? अकेले एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है. एक पूरी टीम की कई दफे जरूरत पड़ती है. नॉट नेसेसरली एट द सेम टाइम, एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम. So many experts get involved into the rehabilitation of the injured athlete. The team of rehabilitation may include, and it includes, स्पोर्ट्स फिजिशियन, स्पोर्ट्स के डॉक्टर जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जिनको सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड इंजरीज की खासी जानकारी है, वो लोग इसमें उनकी जरूरत पड़ती है. आर्थोपेडिक सर्जन्स, हड्डी के डॉक्टर, जो कभी कई दफे ऑपरेशन करना पड़े उनकी जरूरत पड़ती है. उसमें भी आर्थोपेडिक सर्जन में आर्थोस्कोपिक सर्जन, कई दफे आर्थोस्कोपी सर्जरी की जरूरत पड़ती, उनकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट जिसके पास स्पोर्ट्स में काम करने का अनुभव है, जिसने बहुत सारे एथलीट को ठीक किया है, बहुत सारे एथलीट्स की इंजरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उसने मतलब हैंडल किया है. बिकॉज स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल physiotherapy. So preferably if he is a sports physiotherapist, he is quite handy for the team. Now there could be, at some point of time, there could be involvement of a sports psychologist, because due to the impact of injury, the player might be psychologically demotivated, down, frustrated and depressed, don't know when he is going to come out of it. So you could require the services of a psychologist to motivate him. At the same time, since he is convalescing, he is nursing his injury, he should be put on a good balanced diet. And since he may be, he may not be training well because the injury has put or confined himself to the bed or with a limited or restricted. So
he needs some diet modification also. Otherwise, while in the process of confinement, he might either gain weight. So his diet also needs to be modified, adjusted according to his current level of fitness. Current level of his exercise demand. Now, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की भी जरूरत पड़ सकती है इन एडवांस रिहेबिलिटेशन. वहां पे जरूरत पड़ेगी जहां गेम स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैसे करानी है, जिस लेवल पे पहले वो ट्रेनिंग करता था, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की भी एडवांस रिहैब के में जरूरत पड़ सकती है. और एथलीट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एथलीट ने करना है, तो एथलीट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मेंबर ऑफ दिस टीम. और उसके कोच की भी, जो उसकी गेम का कोच है. बिना कोच के कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कोच मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये इंजरी हुई है तो क्यों हुई है, इसमें क्या वो करवा रहे थे, उनको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन होगा. कहीं गेम खेलने में हुई है तो कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो ट्रेनिंग कुछ ज्यादा हार्ड हो गई, ज्यादा हो गया, या इसकी क्षमता से ज्यादा था, चोट लग गई. तो और टू मेक श्योर कि हिज एथलीट डज इट, हिज एथलीट फॉलोज इट, so involvement of coach as a team rehabilitation is quite important. Now coming on to the impact of an injury. अब चोट लगती है तो उसका कुछ तो प्रभाव होता ही है, ऐसा तो नहीं है चोट लगी है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव होगा. और उस चोट ने ही प्लेयर को ये मजबूर किया है कि वो डॉक्टर को जाके दिखाए, फिजियोथेरेपिस्ट को जाके दिखाए. अगर चोट ना लगती तो वो उसकी ट्रेनिंग बदस्तूर जारी रहती, वो उसी तरह से खेल रहा होता, वो उसी तरह से अपनी दिनचर्या में मशगूल होता जिस तरह से वो पहले था. तो इंजरी हुई, एंड इंजरी इज इंपैक्टिंग हिज ट्रेनिंग. His day-to-day training is getting affected because of the impact of injury. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां कहीं भी चोट लगी है, वो चोट कहीं भी हो सकती है, मसल में हो सकती है, लिगामेंट में हो सकती है, टेंडन में हो सकती है, किसी सॉफ्ट टिश्यू में हो सकती है, बोन में हो सकती है. तो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से क्या हुआ है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, छूने पे हाथ नहीं लगाया जाता, काफी वो एरिया पेनफुल हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, टेंडर टू टच. सो स्पोर्ट्स इंजरी में जो मेन लक्षण है वो पेन का है. तो अगर उसको पेन है तभी प्लेयर ज्यादा परेशान है. तो अगर sometimes and it is in most of the cases it has been seen that it is the pain which forces an athlete to seek consultation by a doctor or a physiotherapist. So pain is one such important thing. जो होगा जब चोट लगेगी तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा, उस पार्ट को इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी. और वो सब क्यों होता है, क्योंकि वहां पे चोट लगने के बाद एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप हो गया है, एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. अब वो इन्फ्लेमेशन क्या है, एक तरह की शरीर की अपनी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है, जिसमें शरीर खुद ब खुद बीमारी में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. अब कोरोना वायरस है तो वो भी इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है. इसी तरह से इंजरी है, वो भी उस जगह पे लोकल इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करती है. और उस लोकल इन्फ्लेमेशन के लक्षण ही पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, डिफिकल्टी टू टेक वर्क फ्रॉम. सो ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ presence of an inflammation or inflammatory reaction that has been set in there because of the impact of injury. So ये जो पेन है, अब ये एक बहुत बड़ा
इनहिबिटिंग फैक्टर है, मूवमेंट को बहुत रोकता है, होने नहीं देता ढंग से। जैसा प्लेयर चाह के भी कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता। तो पेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट inhibiting factor or movement restricting factor or function affecting factor you can say. तो pain leads to limited use, वो जगह का हम use limited कर सकते हैं, and this limited use may lead to development of weakness, development of reduction in the fitness level and all components of fitness. खाली ताकत ही नहीं, खाली वीकनेस ही नहीं कम हो जाती। अगर हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है तो हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, हैमस्ट्रिंग मसल की इंड्योरेंस भी कम हो जाता है, कार्य करने की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और इन जनरल बैलेंस भी अफेक्टेड हो जाता है। लोअर लिम्ब में चोटों में बैलेंस भी अफेक्टेड हो जाता है। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो एजिलिटी वाले गेम हैं, जैसे रैकेट स्पोर्ट्स हुआ, टेनिस हुआ, कोर्ट में इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है। अब वो भागने दौड़ने के लिए तो भाई दमखम चाहिए। अगर आपके पास दमखम नहीं है, यू वोंट बी एबल टू रश बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, just reacting to the ball, incoming ball. So these all are the impact of an injury. The sports injury causes pain, swelling, tenderness due to the inflammatory reaction that is being set in there. Now this pain leads to the limited use because patient, even despite his wishes, is not able to take work from that part the way he wishes. And this limited use, if it is for prolonged period of time, it is going to decrease the all components of physical fitness and make him further incapacitated. अब रिहेबिलिटेशन का क्या पर्पज है? आज हम रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पुनर्वास के बारे में पढ़ रहे हैं। पुनर्वास का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पुनर्वास किया जाता है, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। The purpose of rehabilitation is to achieve, as I've told you, pre-injury level fitness, and these pre-injury level fitness में वो कैपेबिलिटीज थी, वो सारी दक्षताएं थी, वो सारी आपकी शारीरिक क्षमताएं थी जो अफेक्टेड हो गई। Those capabilities were lost due to the injury, illness, as the case may be. A full rehabilitation program, therefore, it is essential. A full rehabilitation program is essential to ensure full recovery. Full recovery के लिए full rehabilitation program follow करना पड़ेगा। अगर आप follow नहीं करेंगे तो inadequate, insufficient rehabilitation होगा और उससे आपको री-इंजरी होने के चांस होंगे। So a full rehabilitation program is essential to ensure full recovery and also to prevent chances of re-injury. Re-injury के chances ये बढ़ जाते हैं। तो ये बात समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि दर्द कम हो गया, ठीक हो गया और बस हम ठीक हो गए। ये कंसेप्ट गलत है। दर्द बहुत जल्दी कम होने वाला है। दवाइयां खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी मशीनें लगा रहे हैं, फर्स्ट एड स्टेट भी लिया है, आइस भी लगाया है आपने 2 दिन बड़े मन से, दर्द बहुत जल्दी कम होने वाला है। लेकिन जो टिश्यूज आपके डैमेज हैं उनमें हीलिंग एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, उनको हील होने में समय लगेगा।
तो आपको ये नहीं समझना है कि दर्द को खाली कम करना ही रिहेबिलिटेशन का एम है, नहीं। रिहेबिलिटेशन एक वो इस तरह का ट्रीटमेंट प्लान है जिसमें हम जो लक्षण हैं उनको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे अपने, क्योंकि बिना उसके तो आप काम नहीं ले सकते, एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन हमें फुल रिहेबिलिटेशन इसलिए भी करना जरूरी है कि जिससे हमें फुल रिकवरी मिले, और फुल रिकवरी जब हमारी होगी तो हमें जल्दी री इंजरी के चांस नहीं होंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। नाउ रिहेबिलिटेशन, व्हाट रिहेबिलिटेशन एम? रिहेबिलिटेशन aims to achieve strength, क्योंकि वीकनेस आ जाती है, तो वीकनेस कैसे दूर होगी? जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जब अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में, रिहैब प्रोग्राम में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को जगह देंगे। endurance is that component of strength where a person has the ability to work at a slower pace and with a lesser load for prolonged period of time. So स्ट्रेंथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं, रिहेबिलिटेशन के माध्यम से एंड्योरेंस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आर द स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल, आर द एक्सटेंसिबिलिटी, आर द इलास्टिसिटी, यू कैन नेम इट in so many ways. This is the capability of a muscle. If it is not addressed properly, and if you, for example, give more emphasis on strength only, then on any day, again there could be chances of injury in that particular muscle, simply because you are not given due importance the stretching component of the rehabilitation or the physical fitness. So fitness, flexibility भी बहुत जरूरी है। अगर flexibility नहीं प्रॉपर होगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे साइड में मसल में है, अनअफेक्टेड साइड की मसल में है, तो चोट लगने की पूरी संभावना है, उसी मसल में दोबारा चोट लग सकती है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। और ज्यादातर ये देखा गया है, चोट लगने में ताकत की ही कमी नहीं होती, क्योंकि ताकत तो हो ऑफ कोर्स जरूरी है, कोई भी गेम खेलेंगे उसमें ताकत चाहिए, लेकिन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे गेम ऐसे जो फ्लेक्सिबिलिटी पे हम ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं सर हमारे गेम में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं, पावर गेम है, ताकत का गेम है। अरे भाई ठीक है, लेकिन बहुत सारी चोटें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से मसल्स में लगती हैं, क्योंकि जब कभी भी डिमांड ऐसी पड़ जाती है जहां पे हम ऑल आउट जोर लगाते हैं, तो वो फिर मसल्स जो हैं वो अगर इनफ्लेक्सिबल हैं या फुली स्ट्रेचेबल नहीं है, तो वो मसल्स जो हैं इंजर्ड हो जाती हैं। तो रिहैब प्रोग्राम में स्ट्रेंथ बढ़ाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी बढ़ाना, जैसा जो गेम है, जैसी जो गेम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से थोड़ा सा उनके गेम के कंपोनेंट्स को विशेष तवज्जो देते हुए, विशेष महत्व देते हुए हम उसको इंक्लूड करते हैं। The ultimate goal of rehabilitation is to limit the extent of injury. जो इंजरी है उसको सीमित करें, इंजरी के फैलाव को सीमित करें, क्योंकि इंजरी में कॉम्प्लिकेट, इंजरी में एग्रेवेट, इंजरी has made you disabled, you have been handicapped by the injury. So the ultimate goal of rehab is to limit the extent of injury, reduce or reverse the impairment. Now whatever impairment, whatever handicap that has been caused because of the injury, the rehabilitation aims to minimize that or to reverse that. And जो फंक्शनल लॉस हुआ है, जो हमारी फंक्शनलिटी में लॉस हुआ है, जो फंक्शनल एबिलिटी में लॉस हुआ है, उसको भी हम रिवर्स करने का प्रयास करते हैं। एट द सेम टाइम ये तो हो गया कि ये चोट लगी और आज हमने इसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन रिहेबिलिटेशन के माध्यम से हम अपने शरीर को फ्यूचर में होने वाली चोटों से बचाव के लिए भी तैयार करते हैं। जहां भी ये देखा गया है कि चोट लगती है
और आप उसको ढंग से रिहैब नहीं करते हैं तो वहीं पे बार बार दोबारा चोट लगती है, ये भी आपने देखा होगा। तो जो प्रिवेंटिव जो मैकेनिज्म है, जो प्रिवेंटिव रोड मैप है, उसमें भी रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ढंग से रिहेबिलिटेशन करेंगे तो फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी चोटों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि उन चोटों के मद्देनजर आपने अपने शरीर को पहले से ही तैयार कर रखा है। आपको पता है कि हम इस बार तो चलिए ठीक होके बाहर आ रहे हैं, लेकिन आगे से आइंदा इस जगह पे चोट ना लगे या उसकी संभावना ना के बराबर रहे, तो उसके लिए भी हमें रिहैब को ढंग से करना है। So ultimate goal of rehab is to limit the extent of injury, reduce or reverse the impairment and functional loss, and prevent, correct, or eliminate altogether the disability. Whatever disability that has ensued, we have to correct that, or we have to eliminate it thoroughly to minimize the impact of injury. Now, what are the principles of rehabilitation? रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? कुछ इसके सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, तो ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। Regardless of the type of injury, the principles of rehabilitation are often same. थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस तरह की चोट है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, जो भी टाइप की टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं वो रिहैब के, उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। So regardless of the type of the injury, the principles of rehabilitation are often same. A professional advice is must. A supervision by physiotherapist is must. You just cannot prescribe exercise and forget it. Or a patient may not take the exercise program and doesn't turn up for follow-up. So during the process of rehab, the person must be in contact with the physiotherapist all the time. At the same time, he cannot simultaneously pursue his game and training and at the same time undergoing a very careful rehabilitation program. Simultaneously, two things cannot go together. बहुत लोग खेल रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, इधर आके फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज भी पूछ जाते हैं, वो भी थोड़ा कर रहे होते हैं, गेम भी खेल, ऐसे सच। You can't eat cake and have it. You can't make best use of both words. दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, ये बात समझिए। चोट के साथ आपको एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज पैटर्न पे या प्रोग्राम पे रहना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके लिए डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। अगर कहीं आपकी इंजरी ऐसी है जिसमें सर्जन की मदद ली गई है, सर्जरी की गई है, आर्थोस्कोपिक सर्जरी की गई है, तो सर्जन के एडवाइसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी और फिजियोथेरेपिस्ट को भी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप रिहैब कर रहे हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन सर्जन अभी तैयार नहीं है, सर्जन कह रहा नहीं अभी नहीं है, अभी वी हैव टू रिमेन वेरी केयरफुल बिकॉज healing will take some time to materialize. So you can't force the tissues to undergo vigorous rehab. So you have to have a good professional advice and supervision all the time during the period of your rehabilitation. The rehabilitation should commence ideally as early as possible. Now this as early, we don't know what is the right time to start the exercises, because this is sometimes becomes $1 million question. We don't know. It all depends how the patient is making progress with our
help we are providing him. At the same time, how much is his handicap? How much is his exercise tolerance? So this is again, but ideally it should be as early as possible. आजकल जो फर्स्ट एड आपने पढ़ा है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन आर प्राइस, राइस आर प्राइस, आजकल एक नया कंसेप्ट भी आ रहा है. वो ये कहता है कि पोलिस, POLICE, we have to protect. P stands for protection of the injured part. We have to protect the injured part. And OL, optimum loading, एक ऑप्टिमम लोडिंग हमें चाहिए. अब वो ऑप्टिमम लोडिंग क्या है, क्या आइडियल लोडिंग है, यही नहीं पता. तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो $1 million क्वेश्चन है. दैट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, दैट डिपेंड्स अपॉन द हैंडीकैप caused by the injury, that depends upon you see how much problem you have with that, how much pain you have, how much handicap you have. But optimum loading should be there as early as we can put load over the patient. His load over his muscle, load over his joint, whatever may be the case. So POLICE, P stands for protection, O for optimum, L for loading, and ICE, the same, RICE are like price. I stand for ice, C stand for compression, and E stand for elevation. So this is a new concept. Not so new, but this is also one concept. I have just told you that you must be aware about it also. Now, रिहेबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम फिटनेस को पूर्ववर्ती स्तर पे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो भी हम एक्सरसाइजेस करवाएं, तो एक तो वो एक्सरसाइजेस पेन फ्री हो. कोई भी एक्सरसाइज अगर पेन को बढ़ाती है, इट मींस कि आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं. इट शुड बी पेन फ्री. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इट. समटाइम्स patients are so sincere in their own interest, they become so selfish that they are doing the exercises despite presence of pain, and that you have to avoid it at all costs. Don't do exercise while painfully hurting your injured part. It should be totally pain free. The purpose and need of rehabilitation must be explained. जो आप कर रहे हैं और जिसके लिए आपने ये एक्सरसाइज और रिहैब का प्रोग्राम डिजाइन किया है, जब तक एथलीट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उसके कोच को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, कंप्लायंस नहीं पॉसिबल है, उसका सहयोग नहीं पॉसिबल है. तो उसको बताया जाना बहुत जरूरी है. द प्लेयर मस्ट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस कि भाई ये कितना जरूरी है. पहले तुम चाहते तो हो ठीक हो जाओ, लेकिन इतना आसान है क्या ठीक होना? अब आपने चोट तो लगवा ली है, चोट लगवाना सबसे आसान था, उसके बाद उस चोट से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है. इट इज गोइंग टू टेक योर वीक्स, योर मंथ्स. तो ये बात एम्फसाइज करनी है, और हम लोग करते हैं प्लेयर को और कोच को भी. एवरीवन इज डिफरेंट, ये भी बात समझना जरूरी है. कोई किसी को माइल्ड एंकल स्प्रेन था, वो जल्दी ठीक होके बाहर आ गया, आपने सोचा वो तो जल्दी ठीक हो गया. अभी हो सकता है देखने में आपका भी एंकल है, लेकिन आपका हो सकता है सीवियरिटी ज्यादा हो, आपको ज्यादा समय लगने वाला हो. तो नो टू केसेस आर सेम एंड नो टू केसेस आर आइडेंटिकल एंड नो टू केसेस आर कंपेरेबल. नो, everybody is different, everybody's injury or illness is different, and they will different and react to exercises in different manners, and different treatment approaches may be required. So grossly though looking, it could be the similar case for you, but for treating physician or treating physiotherapist, they are entirely different. Now, रिहेबिलिटेशन के प्रिंसिपल्स को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है. वी हैव टू अवॉइड एग्रेशन.
अब हम इंजर्ड हैं भाई, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। रिहेबिलिटेशन में जो भी एक्सरसाइजेज या हम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेज ना करें। वी हैव टू अवॉइड एग्रेशन। आराम आराम से चलें, समय लगने वाला है, समय लग के ठीक होने वाली चीज है। बहुत एग्रेसिव जो अप्रोच है वो आपको भी मुश्किल में डालेगी और बहुत इंथुसियास्टिक फिजियोथेरेपिस्ट को भी मुश्किल में डालेगी, क्योंकि जिस चीज में जो ठीक होने के लिए से पहले रिलैप्स होने का चांस बहुत बड़े में। आप बताइए, और इससे ज्यादा भी मैं कर सकता हूँ। तो प्लेयर तो बहुत ज्यादा करता था, अब वो फिजियोथेरेपिस्ट की बताई हुई हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जिनके माध्यम से हम रिहैब करते हैं, तो वो उसको तो बहुत लाइट लगती है। सर इससे क्या होने वाला है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा उठाता था वेट, मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर ले। अरे भाई, कर लेते थे, आज की डेट में आप कर नहीं सकेंगे, और करेंगे तो आप अपनी इंजरी को बढ़ा के करेंगे, तो फिर आप फिर पीछे जाने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो अप्रोच है वो ठीक नहीं होता। नाप तौल के एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, टेलर मेड एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जो आपकी वर्तमान में जो आपकी क्षमता है और वर्तमान में जो आपकी स्थिति है उसके मद्देनजर उतनी ही एक्सरसाइज आप करें जितनी एक्सरसाइज आपके शरीर से सध सके, हो सके। बहुत ज्यादा जोश में एक्सरसाइज करके या बहुत क्या कहते हैं वो, टू मच टू सून वाला जो अप्रोच है वो आपको फिर काफी पीछे ले जाएगा। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चोट लगा ली है तो अब सब्र भी रखना सीखें, क्योंकि जल्दी से बाहर आने में मतलब इट्स नॉट ए ओवरनाइट और ऐसा नहीं है कि आज चोट लगी कल तक ठीक हो गया। ऐसा किसी डॉक्टर के पास, ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ना किसी के पास कोई ऐसा जादू है ही नहीं, ये भी समझिए। कई दफे हम लोग देखते हैं कि वो डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन लगा दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। अरे भाई, एक होता है शॉर्ट टर्म मेजर्स, एक होता लॉन्ग टर्म मेजर्स। हीलिंग इज ए लॉन्ग टाइम अफेयर, ये भी जाने। You are down because of the impact of injury. The injury is going to heal and it is going to take its full due course. So don't expect anything. दूसरी बात क्या है कि जो टाइमिंग है, कई दफे चोट की ऐसी टाइमिंग हो जाती है, हमारे कंपटीशन के आसपास चोट लग जाती है, हम कहते हैं सर फटाफट ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। आप इतने टाइमिंग थी, जो समय लगेगा, रेस्पेक्ट दैट प्रिंसिपल। और आपने कम तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना मर्जी मैं 1 घंटे आपको पढ़ा दूं, चाहे 4 घंटे वही बात समझा दूं। अगर आप एथलीट हैं तो आपको आपके बिना सहयोग के कल को आप कोच बन जाएं किसी लड़के को, आपने भाई कि चलो इससे हमने नेशनल में मेडल निकलवाना है या किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल निकलवाना है। अब वो लड़का आपकी बताई हुई ट्रेनिंग को फॉलो ही नहीं करता है, कंप्लायंट ही नहीं है, ही इज नॉट ए कंप्लायंट एथलीट, तो आप करोगे तो आप उसको रखे रहिए, दैट हैज नो मीनिंग। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जगह क्या होता है, प्लेयर 10 जगह सलाह लेता है, 10 लोगों से एडवाइस लेता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, और इसी प्रोसेस में वो कंफ्यूज भी हो जाता है और नॉन कंप्लायंट भी रहता है।
सलाह तब लीजिए जब एक सलाह से आपको आराम ना मिले। थोड़ा सब्र रखिए, बहुत जल्दी मैंने जैसे कहा कुछ नहीं होने वाला है, तो धीरे 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 ही सब कुछ होगा। तो थोड़ा उस तरह से भी अपनी सोच को रखिए। इंडिविजुअलाइजेशन, जो भी रिहेबिलिटेशन है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, उस पर्सन के, उस प्लेयर स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन है। तो भाई जब तक इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होगा, जब तक इंडिविजुअल को केंद्र में रख के रिहैब प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, खाली किताब में पढ़ लिया ये चीज वो चीज, ऐसे थोड़े होता है। उस प्लेयर की क्या जरूरतें हैं, क्या उसकी गेम की जरूरतें हैं, क्या उसकी इंजरी है, किस तरह की इंजरी है, किस तरह की उसकी सीवियरिटी है, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, what he can do and what he cannot do again. So exercises, rehabilitation is basically a plan of set of exercises, and these exercises should be individual centric, patient centric. तो एक टेलर मेड एक्सरसाइजेस डिजाइन की जाती हैं, और वो भी आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड वो एक्सरसाइज बताई जाती हैं। क्योंकि इनिशियली पेन भी तो है ना भाई, तो वो पेन को कोई भी चीज बढ़ा न दे, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करानी है। तो जो भी एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। कई दफे हम या तो बहुत हार्ड एक्सरसाइज बता देते हैं जो पेशेंट करता है, अगले दिन कहता है दर्द बढ़ गया। कई दफे हम बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज बता देते हैं जिनका कोई असर ही नहीं होता। तो ये सारी कुछ कितना बताना है, कितना कराना है, कैसे कराना है, क्या प्रोग्राम देना है, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस, कितने नंबर ऑफ सेट्स, कितने बार दिन में, कितने सेशंस रिहैब के, आपके कितना ड्यूरेशन जो आपके सामने वो करेगा, कितना घर जाके करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक इंडिविजुअल की प्रेजेंट लेवल ऑफ उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनके मद्देनजर हम डिजाइन करते हैं, टेलर मेड होती हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग, अब ये करेंगे तो ये करेंगे, अब ये स्टेज आ जाएगी इसके बाद ये करेंगे। तो ये जो एक सीक्वेंसिंग का है, अब शुरू में क्या होता है, अर्ली स्टेज में इंजरी के सबसे ज्यादा तो वही मैंने कहा ना, एक पेन ही तो एक इनहिबिटिंग फैक्टर है। पेन ना होता तो जल्दी प्लेयर आता ही नहीं आपके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता ही नहीं, डॉक्टर पास आता ही नहीं। तो वो पेन जो है, पेन हैज फोर्स्ड हिम टू सीक ओपिनियन अबाउट हिज प्रॉब्लम। सो शुरू में हम लोग पेन और जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेटरी जो साइंस हैं उनको टैकल करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए दवाइयां भी डॉक्टर देता है, उनके लिए हम फिजियोथेरेपी की मशीनें, उसके लिए फर्स्ट एड में हम आइस इटसेल्फ हैज ए एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। आइस ही ढंग से आप कर लीजिए तो मोर देन 50% तो पेन आपको इसी 2 ही दिन में कम हो जाना है। एंड ऑफ कोर्स इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन की हमें जरूरत है वो हम कितनी करा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। अगर इंटेंस रिहेबिलिटेशन नहीं है, कंटिन्यूअस सस्टेन्ड रिहेबिलिटेशन नहीं है, इंटरप्टेड रिहेबिलिटेशन है, कैजुअल अप्रोच है रिहेबिलिटेशन के प्रति, आप जो उससे गोल हैं वो हासिल नहीं करने वाले हैं। तो ये भी बात समझने की बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस की जो इंटेंसिटी है वो ऐसी हो कि जो प्लेयर जो है उसको बर्दाश्त कर सके, और उससे डेली टच में, डेली फीडबैक लेके हमें ये पता लगेगा कि हाँ भाई वो कितना कर रहा, कितना कर सकता, कितना नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता आप करेक्ट कर दीजिए। आप अपने हो सकता है आप भी, क्योंकि बिकॉज पेन इटसेल्फ इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। पेशेंट को पेन फील होगा, आपको थोड़े होगा। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यू डोंट फील पेन, यू कैन ओनली सी हिज फेस जस्ट टू गाज द पेन, बट यू सी वो चीज आपके उसमें नहीं है, मतलब आप भी कहीं गड़बड़ कर सकते हैं।
तो हमें बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करानी है, नहीं बतानी है, ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। एंड लास्ट पॉइंट, टोटल पेशेंट। अरे भाई, हमें खाली वो आपको पास आया है एंकल इंजरी के लिए, हैमस्ट्रिंग इंजरी के लिए, नी इंजरी के लिए, शोल्डर इंजरी के लिए, डोंट थिंक हिम इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट और दैट पर्टिकुलर मसल. He is not just a case of knee, just a case of ankle, just a case of hamstring or adductor muscle or quadriceps muscle. Think that he is a human being. He is a player. He has sustained injury, and due to injury, he is now unable to undergo his training, his all preparation for a particular game, for example, Olympics, Asian Games, national game, whatever may be. You see, his goal setting, that all has been hindered, obstructed because of the unimaginable injury that has fallen on him, that has befallen on him. And this has led to a situation in which he is now becoming gradually and gradually hopeless if his fitness aspect is not addressed properly. So we have to see the athlete in entirety, not only in terms of injured part. जो पार्ट उसके अच्छे भले हैं, एक जॉइंट में चोट लगी है, बाकी जॉइंट तो नहीं खराब है, एक एक्सट्रीमिटी में चोट लगी है, बाकी एक्सट्रीमिटी तो ठीक है, हमें उसको उस तरह की सारी एक्सरसाइजेस, बाकी बचे हुए रिमेनिंग स्पेयर्ड जॉइंट एंड मसल्स बॉडी के लिए हमें डिजाइन करनी है रिहैब में, जिससे कि हम उनकी फिटनेस को बरकरार रख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि इस इंजरी के चक्कर में बाकियों की फिटनेस भी कम हो जाए। अगर वो रनिंग नहीं कर सकता एंकल इंजरी की वजह से, तो उसको स्विमिंग करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं, जो भी चीज स्टेशनरी या बैठे बैठे कर सकता है विदाउट हर्टिंग और एग्रीवेटिंग हिज इंजरी, वो फिजियोथेरेपिस्ट ने डिसाइड करना है। अगेन, तो मैं ये आपको ये बात कह रहा हूं कि वी हैव टू सी द पर्सन इन टोटलिटी, दैट इज माय मैसेज। सो यू हैव टू understand the importance of these few principles of rehabilitation and exactly abide by that. Thank you very much. This is for today, and later on we shall deal with in our next class on this aspect. Thank you.